बेसिकली हमारा जो पैनल है वो है ब्रिजिंग द गैप्स बिटवीन यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड जॉब मार्केट रेडीनेस। हमारे कुछ पैनलिस्ट हैं जिनको डिटेल्स मालूम नहीं है, तो सर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यूनिवर्सिटी से बच्चे पास आउट होते हैं तो वो इतने कॉम्पिटेंट होते नहीं हैं, तो हम उसके कॉजेज़ पे बात करेंगे और उसके रीजंस को हम हाईलाइट करेंगे ताकि हम कुछ कंक्लूड कर सकें कि ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है कि जब बच्चे यूनिवर्सिटी से जब बच्चे यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं तो उनको जॉब्स क्यों नहीं मिल रही होती। क्या उनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है, क्या उनके पास एजुकेशन की कमी होती है। तो इसके लिए सर अतीक अहमद खान, मैंने एनओपी नेशनल आउटरीच प्रोग्राम हमने इस्लामाबाद की लॉन्च की थी और हमने उस पर बहुत सारा वर्क किया था, तो उसके लिए मैं सर अतीक से मैंने वीडियो बनवाई थी। हमने सर अतीक के साथ इस्लामाबाद में लॉन्च किया था, लाहौर में ऑलरेडी नेशनल आउटरीच प्रोग्राम ने काम किया था। हम एक वीडियो चलाते हैं, उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज आप वीडियो प्ले कीजिएगा। Currently, I'm running one of my consulting companies. That consulting company is basically providing the IT and project management consulting services for different organizations. Apart from that, I'm also part of a forum that is named as Training Forum in Lahore. And the purpose of that training forum is to provide volunteer services to develop the human resources of different organizations on different topics. And that, one of the topics that really attracts not only me, but all the people in the training forum is bridging the gap between the industry and the academia. In addition to all the things which I do professionally, I've always been associated with academia. It's been like 30 plus years that I've been teaching at different universities, particularly the different subjects. And one of the real purposes for that has already been to bridge the gap between the industrial practices and what is happening in the academic institutions in our part of the world. For this purpose, this is like a wonderful topic that has been selected by the people who are organizing this seminar and discussion. I'm grateful to Ms. Naveen who has chosen this particular topic, because this is like a topic that really needs to be addressed in mostly in Pakistan, because we all know that the human resources being used by the academic institutions does not bring in a lot of value to the industrial organizations in our country. Bridging the gap, the only solution which I see is collaboration. Collaboration is supposed to be between all the stakeholders, whether it is like the students, the academic management, the industrial organizations, or the organizations otherwise, and the decision makers who make these policies. Collaboration always requires lots of efforts from all the stakeholders. It's not just one stakeholder which can take lead and bridge the gap. So this is the key solution which I can suggest today, and we can start talking about this. Apart from this, this will not be out of context to congratulate the management of this seminar or the discussion, and particularly Ms. Nadine, who has brought this topic forward to have a discussion on where the people can talk about and come up with the solutions for this particular problem. It will not be again out of context, which if I don't recall the moment when we met professionally about a decade or so, Ms. Nadine, and first we came into the contact. That was wonderful. We, as I said, I run the training forum, so we were running another forum at that point in time, and we were about to launch the Islamabad chapter at that point in time, and Ms. Maggie was the contact person in Islamabad, and she single-handedly managed the launch of that Islamabad chapter
without making us disturb at Lahore for that matter. So I must congratulate all the management and Ms. Mary particularly for holding this seminar, and I wish you best of luck for it. Thank you. अच्छा, मैं स्टार्ट करूंगी सर रिजवान से स्टार्ट करेंगे कि सर आप बैरियर यूनिवर्सिटी में होते हैं और आपको क्या फील होता है कि ऐसा हमारे जो ग्रेजुएट्स होते हैं वहाँ पे ऐसी क्या कमी है जो इंडस्ट्री उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती? Okay, ji, Assalamualaikum. First of all, I would like to thank you to call me here and then to talk about the education system that not to the graduations, why our graduates has not up to the mark as the industry requirement. Actually, there is three things right now at the moment which you need to figure out. The first thing about the HSC, the Higher Education Commission point of view, because HSC has designed an outline and they are keep updating it, but as you know that every single day we are facing with a new technology, right? We are facing with a new interaction, we are facing with the new things. So that's why how we can cope with this according to the marketing needs. That's the most important thing. So first of all, the main responsibility is about the HSA, the Higher Education Commission, that they need to revise their curriculum is straight away or empower the university that they can champion himself. Otherwise, the university is bounded by the HSC, they cannot change the outline. The first thing is that. And the second thing is that if I have a chance to go to outside and abroad, like the USA, Canada, or UK, you can see that normally the industry they are associated with the university. They always come to the university and ask the problem. But here in the Pakistan, university are trying to bridge academia gap, but industry normally doesn't come into the organization, the university, because they have a different kind of fees and they might think that the educationists are different. So that's why there is a still gap. So this is the second thing. That's why, as you can see, like the medical university, every medical university have a hospital next to them. So if they want to do a practice, they will go over there and do the practice. But as far as engineering and the business school, you cannot see so many organizations are staying in the university. Very few of them, they have incubation center, innovation, that's fine. Okay, that's the second thing about the dilemma. University is not giving the space to the organization to sit in the university, make their offices, and have the interaction with the students. And the third and the most important thing, to be honest, as we are all over here, I'm talking to the address, you guys as well, and online as well, trust me, that our education system is based on your memorizing or your knowledge. Jawab dijiye bhai. Knowledge or the memorization is based on your matriculations, your intermediate, your degree is all about your memorization, not the knowledge. So this is the three things which we need to figure out when we become to the knowledge-based education system. Yes, then we will just try to bridge the gap. And after the graduation, normally the student will not go to the universities. Like the university asks the companies, these are the students, they are ready to the market and just do it. Thank you. Sir, same question आपसे करती हूँ. Thank you very much. I also endorse the point of view also because we are facing so kind of issues related to gap in the social market and job of the new generation, youngsters. So हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसको अगर हम प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक देखें तो आज अगर हम देखें प्राइमरी से अगर मैं बात करूं तो यहाँ 3 किस्म के तालीमी सिस्टम मौजूद हैं. नंबर 1 गवर्नमेंट, नंबर 2 प्राइवेट और नंबर 3 इस्लामिक आइडियोलॉजी यानी कि मदरसा सिस्टम. सो हम ये देखते हैं कि आज का जो बच्चा है, आज हम 2025 में रहते हैं
और कल ये बच्चा जब सर्व करेगा, यानी कि 25 साल बाद वो दौर होगा 2050 का, यानी कि 2050 में जो ये कराची, ये दुनिया कहाँ होगी। आईटी में जब एआई का इंटरवेंट हुआ है, इस वक्त हम कहाँ हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज जो है, हमें आज तक ये डिसाइड हम नहीं कर पाए कि पाकिस्तान जो है एग्रीकल्चरल मुल्क है या ये जो है एक सनअती मुल्क है। मगर ये दोनों जो हमारे एरियाज हैं, उसमें साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसमें बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रही है, और हम नाउम्मीद नहीं है इंशाल्लाह। इसको जो पॉलिसी प्लानर्स हैं वो समझते हैं कि आईटी सेक्टर जो है वो इसका नीड है, और इसमें हम कोऑपरेट करेंगे और इंशाल्लाह इसको जो है इम्प्रूव करेंगे। सर खादिम हुसैन को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आपसे मैं क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ कि करियर काउंसलिंग किस कदर इम्पोर्टेंट है, और इस मैटर को हम करियर काउंसलिंग के थ्रू कैसे और किन क्लासेस में ये ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मेरी मुश्ताक एंड ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले जो है जो लास्ट में दो दोस्तों ने जो बात की है तो मैं सेकंड करूंगा। मेरे हिसाब से बीइंग अ टीचर, the career counseling is the most important component. If we focus on career counseling, तो जो रेस्ट जो इशू है उनमें काफी जो है हमें हेल्प आउट मिल जाती है, मदद मिल जाती है। सबसे पहले हमारे पास जो यूनिवर्सिटी में जो बच्चा आता है उसकी कोई करियर काउंसलिंग नहीं है, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, क्यों जाना है, क्या पर्पस है, बस जाना है, एडमिशन लेनी है। अच्छा, सेकंड इम्पोर्टेंट जो इशू होता है कि हमारे पास आउटडेटेड करिकुलम यूनिवर्सिटी के अंदर काम हो रहा है, मगर द वे द आर्ट जो है जो आईटी तरक्की करे उस हिसाब से जो है बहुत कम है। तो हमें सबसे पहले जो हमारा आउटडेटेड करिकुलम है उसको हमें अपडेटेड करना होगा। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, देयर शुड बी अ स्ट्रांग कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। इंडस्ट्री और एकेडमिया के साथ जब कोलैबोरेशन होगा, जो हमारे बच्चे जो जॉबलेस हो जाते हैं, जो उनको जॉब मिलेगी। अच्छा, करियर काउंसलिंग के डिफरेंट कंपोनेंट है। एक तो इनिशियल स्टेजेस में हमें बच्चों को करियर काउंसलिंग करनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो आफ्टर जो है एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज द बिगिनिंग। एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद जो है सेकेंडरी एजुकेशन पे भी हमें और फोकस करना चाहिए। यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल लास्ट कंपोनेंट है, जहाँ पे जो है स्टूडेंट को केयरफुली जो है कोई ना कोई जो है प्रोग्राम सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में वो अपने आप को यूज कर सकें और अपने करियर से एंजॉय करें। थैंक यू सर साथ साथ मैं ये पूछना चाहूँगी कि बच्चों को जब हम किस एज में, मतलब किस एज में और किस तरीके से हम करियर काउंसलिंग में लेके चलें ताकि बच्चा जो है वो उस अपने फील्ड को बचपन से ही चूज कर ले। अच्छा, सबसे पहले जो है प्राइमरी एज में जो है ये इनिशियल स्टेज है। प्राइमरी एज में हम कम से कम बच्चों को डिफरेंट तरीके से, जैसे हमारे पास रूट लर्निंग है, उससे हटके हम बच्चों को जो है डिस्कवरी मेथड के जरिए या हम बच्चों को जो है डिफरेंट तरीके से उनको जो है इस चीज का रियलाइज कराएंगे उनको जाना क्या है। हमारे यहाँ दो बड़े प्रॉब्लम है। एक तो है बच्चा कुछ करना चाहता है और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके अपने ड्रीम सेट हुए हैं कि भाई मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या उनको जो है प्रोफेसर बनना है, मगर बच्चा क्या कर रहा है उस पर हम कभी फोकस नहीं करें। चलो यहाँ प्राइमरी से तो उसने पास कर ली, फिर अगला जो स्टेप आ जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन। अच्छा, एलिमेंट्री एजुकेशन के पास आगे जो है बच्चे को जो है सिलेक्ट करना है, साइंस पे जाना है या उनको जो है जनरल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने, वहां भी उनकी करियर काउंसलिंग नहीं है। जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है तो फिर उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है प्री मेडिकल, एक होती है प्री इंजीनियरिंग। अब प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के बाद आगे बच्चे के पास जो है दो ऑप्शन होते हैं। अगर वो बच्चा ब्रिलियंट है तो डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है, वरना यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, जब यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो उसको ये नहीं पता होता कि यूनिवर्सिटी में उसको कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, क्यों करना है, वहां भी हमें जो है ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं सर कपिल कुमार को स्टेज पे दावत देना चाहूंगी कि वो रोस्टम पे आए और आके अपने थोड़े से व्यूज दें। टीचिंग कर रहा हूँ हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में, मेरे वाइस चांसलर भी यहाँ बैठे हुए हैं।
सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उनके सामने ये बात करने का मौका मिल रहा है। जब तक HEC नहीं जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन, कि ये गैप खत्म हो, ये तब तक नहीं होगा। रीजन इज दिस कि जो HEC या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है, चाहे वो किसी भी अथॉरिटी में हो, इदारे में हो, वो पॉलिसी मेकर्स इंडस्ट्री से जब नहीं होंगे ना, तो ये इंडस्ट्री एकेडमिया गैप खत्म नहीं होगा। दे आर प्रोफेसर्स और यहाँ हम इंडस्ट्री की बात करते हैं। ये दो अलग अलग ब्रिजेस हैं, अलग अलग इनका पूरा एक रूट मैप है। क्योंकि जो हमें इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, मैं इंडस्ट्री में भी काम कर रहा हूँ, एकेडमिया में भी हूँ, तो इंडस्ट्री के जो डायमेंशंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमें किस तरह का रिसोर्स चाहिए, ये एक बिल्कुल ही सेपरेट एक एरिया है। जब तक ये इंटीग्रेशन नहीं होगी हमारी अथॉरिटीज और यूनिवर्सिटीज, तो हमारे पास अच्छा आउटकम नहीं आएगा। और जहां तक हम एजुकेशनल फ्लॉस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना एलिमेंट्री कोई रोड मैप है, ना हमारे पास हायर सेकेंडरी रोड मैप है, और ना ही हायर एजुकेशन रोड मैप है। ये जो हमारे पास बच्चा है, ये खुद अपना कैरियर चूज करता है और वो ऐसे जाता है, वो गो विद द फ्लो की सिचुएशन में जाता है। जैसे उन्होंने कहा, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है। जब तक हम एक पूरा रोड मैप नहीं लाएंगे, और ये सारे जितने भी अलग अलग इदारे हैं, और ये बिल्कुल ही अलग अलग सेपरेटली डील हो रहे हैं। हमारे पास कोई एक सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। हमारे मुल्क में एक अलमिया है, क्योंकि जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री जो बिल्कुल बेसिक एजुकेशन है वो सूबों का काम है। फिर जो हायर एजुकेशन है वो बोर्ड्स के ताबे है, जो बोर्ड्स बने हुए डिफरेंट किस्म के। हमारे पास सिंध में तकरीबन 12-13 बोर्ड है, जो कि सबके अलग अलग पॉलिसीज हैं, अलग अलग पेपर, अलग अलग निजाम। फिर इसी तरह जब हम फेडरल की बात करते हैं, उनका अलग बोर्ड बना हुआ है। जब तक एक सिंगल नेशनल कैरिकुलम फ्रॉम द एलिमेंट्री क्लास टू द हायर एजुकेशन नहीं होगा, तो हमारे पास ये रोड मैप ठीक नहीं हो सकता। सो जितने भी स्टेक होल्डर्स आज इस हॉल में मौजूद हैं, मेरे ऑगस्ट कोलीग्स, जिनको जहां कंट्रीब्यूशन का मौका मिल रहा है, तो हम सब मिलके ना अगर इसको सिंगल कैरिकुलम पे लेके आएंगे, रोड मैप क्रिएट करेंगे, तो हमारा एजुकेशन और एकेडमिया ये सारा मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। अदरवाइज देयर इज नो वे बिटवीन। हम वरना आपको पता है, पाकिस्तान में हमेशा इकोसिस्टम की बात करते हैं कि जी डिफरेंट इकोसिस्टम्स बने हुए हैं, एक एजुकेशन का भी एकेडमिया इकोसिस्टम बना हुआ है। बट मैं इस इकोसिस्टम को हमेशा एक वर्ड से डिनोट करता हूँ कि ये हमारे पास इकोसिस्टम की बजाय इकोसिस्टम है। हमने इकोसिस्टम बनाया हुआ है, गवर्नमेंट्स ने, अथॉरिटीज ने, इंडिविजुअल्स ने, स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने, हर किसी की अपनी ईगो है। जब जिस दिन हम उस ईगो को इकोसिस्टम की तरफ लेके आएंगे, तो हमारी सारी ब्रिजेस जो है मिल जाएंगी और हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो तमाम गवर्नमेंट अथॉरिटीज या जितने भी लोग सुन रहे हैं, सो वी नीड टू रीथिंक एंड मेक अ इकोसिस्टम। सर मैं एक और रिक्वेस्ट ये है कि हमारे दरमियान डायरेक्टर जनरल कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध मुनव्वर अली मैसर साहब मौजूद हैं, तो प्लीज क्लैपिंग एंड वेलकम। क्लैपिंग फॉर मुनव्वर मैसर साहब, डायरेक्टर जनरल कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। थैंक यू सो मच सर, आपके आने का शुक्रिया। आप हमारे दरमियान हैं, हमें खुशी है और हमारे लिए एजाज है कि ये जो उनके हाथों से एप्रिसिएशन जाएगी, तो ये हमारे लिए एक खुशी का बायस है। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। अच्छा, कपिल साहब से एक और क्वेश्चन है और वो कंटिन्यू करूंगी रिजवान साहब से भी कि सर जब इंडस्ट्री की बात आती है, तो इंडस्ट्री क्या डिमांड करता है बच्चों से जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता? देखिए, फ्रेश ग्रेजुएट से बस एक ही डिमांड होती है कि वो फ्लेक्सिबल हो और उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट हो जो मुझे आज जॉब के लिए चाहिए। हम क्योंकि आउटडेटेड नॉलेज होती है, और जो चीजें मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, बहुत खुल के बोलूंगा, मैंने तो ये अपनी क्लासेस में इम्प्लीमेंट किया है कि स्टूडेंट्स को वो नॉलेज नहीं देनी जो 10 साल पहले डिसाइड हुई थी। हमें आज वो नॉलेज देनी है जो आज की रिक्वायरमेंट है। हम एआई के दौर में चल रहे हैं। आप देखें एआई के पिछले आपने 6 महीने 1 साल में एआई का सुना होगा सबने, चैट जीपीटी का। अब एआई के तकरीबन 9 मॉडल्स आ चुके हैं इस 1 साल में, और अब तक हमारे पास एजुकेशन पॉलिसी में एआई है ही नहीं। तो आज जो बच्चे मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ, अगर मेरी कंपनी लेट्स सपोज एजुकेशन एक सॉफ्टवेयर बना रही है एआई बेस्ड, तो मुझे पता है वो जो आउटडेटेड ग्रेजुएट है, जो 10 साल पुरानी चीजें पढ़ के आ रहे हैं मेरे पास, मैं उसको कहाँ जगह दूंगा? अगर मैं उसको हायर भी कर दूं तो उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ होगी? याद रखिएगा, कॉर्पोरेट में सिंपल फॉर्मूला होता है कि अगर 50,000 रुपए किसी को पे कर रहे हैं, उसको 1.5 लाख रुपए का काम करना है।
वरना वो रिसोर्स मेरे काम का नहीं है। सरकारी नौकरी तो नहीं है ना, सुबह आएगा, हाजिरी लगाएगा और बोनस उसको मिल जाएगा, चाहे वो काम करे ना करे। ये प्राइवेट जॉब है। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं, वहां पर उसका आउटपुट हमेशा इनपुट से ज्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं ग्रेजुएट्स को और मेरी जितने भी एकेडमिया से यहाँ दोस्त मौजूद हैं वो इनकरेज करें अपने स्टूडेंट्स को कि वो आउट ऑफ द वे जाके भी कोर्सेज करें। जो चीजें हम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा रहे वो 10-15 फ्री की सर्टिफिकेशंस बाहर से करके आ जाए, और डिग्री के साथ ये मैंडेटरी हो जाए कि आपके पास गूगल सर्टिफिकेशंस हो 4-5। हम कोर्सेज के साथ साथ ये सर्टिफिकेशन भी अगर अपने प्रोग्राम्स में डाल देंगे तो वो प्रोग्राम की अफादियत बढ़ जाएगी और वो रेडी हो जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी आ जाएगी। तो मैं, हमारे वीसी साहब मौजूद है, मैं इनको कहूंगा कि ये भी क्योंकि डीन्स और डायरेक्टर्स के पार्ट हैं पूरे पाकिस्तान के, तो ऐसे इनिशिएटिव्स हमें लेने हैं जहां पे हम वैल्यू क्रिएट कर सकें। हमें वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाने, ग्रेजुएट्स नहीं बनाने। लाखों ग्रेजुएट्स हैं जो अनएम्प्लॉयड है, तो ये एम्प्लॉयबिलिटी खुद आ जाती है। सर आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? और सर दूसरा ये कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनको एक ही क्वेश्चन होता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। ऑब्वियसली एक फ्रेश ग्रेजुएट एक्सपीरियंस नहीं होता, तो थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा इसमें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़मीन का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ पर मौका दिया। देखिए, हम जब जो हमारे साथी बोल चुके हैं उसके तनाज़ में बोलूँगा। मैं एक मिसाल दूंगा। देखिए, जो कल्चर है, एक होता है आइडियल कल्चर, एक होता है रियल कल्चर। आइडियल कल्चर होता है जैसे लोग समझते हैं कि हमें उस पर अमल करना चाहिए, जबकि हकीकी तौर पे हम उस पर अमल नहीं कर रहे होते। इस वक्त हमारा जो गैप है यूनिवर्सिटीज़ का और उसकी खबर का यही है। यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ वो पढ़ाया जा रहा है और बच्चे भी वो पढ़ रहे हैं जिनसे वो डिग्री लेना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल खुलकर कहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है एक तो आउट ऑफ डेट है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। उनमें वो जो एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, पर्टिकुलरली जो एबिलिटीज़ और स्किल्स प्रैक्टिकल फील्ड के लिए दरकार हैं, उनकी कमी पाई जाती है। यही वजह है कि जब वो जाते हैं जॉब के लिए तो वहाँ पर अगर उन्हें जॉब मिल भी जाए तो उनको अपनी सलाहियतें की कमी की वजह से वहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर जब हम, आपने क्या सवाल किया था आखिर में? सर बस इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहे हैं हम लोग, और सर शकील जो है इसको कंक्लूड करेंगे बहुत क्विकली। आप सर शकील को माइक दे दीजिए। सर शकील, आप इसको थोड़ा सा क्विकली कंक्लूड कर दें कि हमने अभी क्या बात की और हम किस जगह खड़े हैं। सर आप बोल दें प्लीज, और हम क्विक करेंगे क्योंकि अब हमें वाइंड अप करना है और हमारे जो अगला पैनल है वो आएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट हमें बातें बताई और बहुत अच्छा हमने इसको लेके चले हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि जो सनती इदारे हैं, अस्पताल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें तजुर्बा शामिल हो, जिसमें डिग्री शामिल हो, लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि उसके अंदर हमारा एटीट्यूड भी शामिल है। हमारा एटीट्यूड शामिल नहीं होने की वजह से, जैसे कपिल साहब ने कहा, वो हमारा स्किल सेट बनता नहीं। हम समझते हैं कि जो हमने पढ़ा है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़े, हमने अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ी, इंजीनियरिंग पढ़ा, या फिर मेडिकल के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। मेडिकल के सब्जेक्ट्स में सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनकी इंटर्नशिप हाउस जॉब की तुलना में हो रहा है। इंजीनियरिंग के तालिब इल्मों की इंटर्नशिप बहुत मुश्किल से होती है अगर वो कारखाने वाले राजी हो जाए, हालांकि ये सरकार का एक कानून है। मैं आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि जैसे सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं, जो एक वाक़ा आने वाला है और जो मौसमी तब्दीली होने वाली है, वो ये कह रहे हैं बादशाह से कि खालिद अलनी इन्नी हफीजुन अलीम, ये जो खजाने हैं जमीन के, ये मुझे दे दिए, मैं बेहतर जानता हूं और बेहतर हिफाजत है। ये वो स्लोगन है या वो जिंदगी का मिशन राह है या जो मोटिवेशन है, वो मेरी जिंदगी में 30-35 साल से है।
और मैं इस बात का प्रचार भी करता रहता हूँ। जैसे अभी हमारे ताहरी ने कहा कि वो जो कस्टोडियनशिप है और वो जो नॉलेज है वो कहां से आएगी। नॉलेज भी जैसे कपिल साहब ने अभी बताया फरमाया कि वो अपडेटेड नॉलेज नहीं है। अपडेटेड नॉलेज की क्या वजह है? किताबें हमारे पास वो मैसर नहीं है जो पिछले साल छपी, और फिर जो रेफरेंस बुक्स हैं वो हम सिर्फ सिलेबस में एक लिस्ट बना देते हैं कि ये रेफरेंस बुक्स है। जैसे हमारे इंजीनियर साहब ने कहा कि वो सारी बातें लिख तो देते हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो गैप है ये खत्म कैसे होगा। He rightly said that it has to be done with the universities themselves or the industries themselves। वो जो कारखाने हैं वो ऐसा मवाद पेश करें, बनाएं, इंटर्नशिप दें जिसमें हमारे नौजवान लोग जाके इल्म हासिल कर सकें, तजुर्बा हासिल कर सकें। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, जो अखबार में जो इश्तिहार लिखा हुआ आता है, वो इश्तिहार ऐसा आता है कि ये डिग्री हो आपके पास और ये तजुर्बा हो आपके पास। डिग्री MBA की हो, PE की हो, कोई सी ऐसी डिग्री हो जो आपने कर ली। दूसरा वो एक्सपीरियंस चाहिए जिसको हम कहते हैं स्किल, महारत। तो महारत तो नहीं आ सकती क्योंकि तजुर्बा कुछ नहीं। और तजुर्बा क्यों नहीं है? कि उनका राब्ता कारखानों वालों से नहीं। अब सवाल यहाँ ये है कि तालीम ही रह गई है डिग्री हमारी, जो कि एक खास मुफीद मुस्तकबिल देने वाली, और वो भी अगर हमने ऐसा पढ़ा है जैसे ये सवाल कर लिए, 2 प्रोजेक्ट कर लिए, कुछ ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। पहला साल गुजर गया, दूसरा साल गुजर गया, अब एक कार की बॉडी आ गई है मशीन में, आपने बॉडी लगा दी, बॉडी में इंजन डाल दी, तीसरे साल पहिए लगा देंगे आप, चौथे साल पेंट करेंगे और बाहर निकाल देंगे। तो यूनिवर्सिटी हमारी तालिब इल्म नहीं पैदा करती। मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका, मैं बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका। तो फर्क सिर्फ इतना है कि हम एक कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनते हैं। उसकी वजह क्या है? जैसे हमारे सर ने कहा कि सर हमारा टाइम अब कम है। ठीक है जी, मैं अब इसको फाइनल कर रहा हूँ यहाँ पर। तो असल बात जो रह गई है वो ये है जी कि जो भी पढ़ रहे हैं वो ताज़ा और अपडेटेड, उसके लिए किताबें पढ़ना जरूरी है, इल्म हासिल करने। अगर ऐसा नहीं है तो गैप 50 साल और रहेगा। और अगर वो ऐसा हो गया है तो फिर जो हमारे इंडस्ट्रीज के लोग हैं वो कुछ ऐसे प्रोग्राम रखें जैसे बहुत सारे मुल्कों में होते हैं, आखिरी साल में वो लाते हैं, उनके साथ इंटर्नशिप करते हैं। तो मैं इसलिए फर्दर मैं इसलिए नहीं कहा कि काफी देर लग जाती, लेकिन मुझे उम्मीद है माहिरीन कि मैंने सारी बातें वो कर ली हैं जो आपने फरमाया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ने हमें सुना, उम्मीद है कि हमने इसको अच्छा कंक्लूड कर लिया और आप तक एक अच्छा मैसेज चला गया। शुक्रिया बहुत बहुत। और शाज़ीन को मैं बुलाना चाहूँगी।